Unisex. So answer is unisexual. Next, which type of reproduction is shown by humans? Asexual, sexual, or both? Or you can say humans cannot reproduce. So what do you think? Yes, eighth A, second bench girl in the red t-shirt. Sexual. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। किसी भी केस में ह्यूमंस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट हियर इन ह्यूमंस, इट्स ओनली इन some other organism that we studied already, ठीक है। coming to the next part, ठीक है। the site of fertilization and human is, अब जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो स्पर्म सेल और एग फ्यूज होते हैं इन ह्यूमंस, कहाँ होते हैं? Inside the body, outside the body, or where it is? Yes, from 8C. Now I need answer from 8C. Yes, 8C से middle row, second bench, yellow t-shirt girl. Your voice is not coming. Yes, now speak up. Internal fertilization in females. किसमें होती है? फीमेल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो आंसर इज दिस ओनली। ह्यूमंस शो विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो ह्यूमन के जो हम क्वेश्चन का मतलब है फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो है, जो बच्चा है, कहाँ डेवलप हो रहा है? वेयर इट इज डेवलपिंग? इट इज इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, और वेयर इट इज? So now from which section? Who is going to tell me? Coming back to the A section, ठीक है। A section से कौन बताएगा? Who is going to tell me this thing? So yes, middle row, second last bench, purple t-shirt boy. आ जाओ बेटा। A option. So you are saying internal fertilization and internal development. That's right. So fertilization भी अंदर होती है, बच्चा जो है womb के अंदर, बच्चा दानी के अंदर ग्रो करता है। So that's right. ठीक है। So now next thing. Humans are oviparous, viviparous, lay eggs, which hatches into larva, give birth to larva. What do you think? But we are B section. Now it's turn of B section. So B section, so who is going to tell me? What about humans? So middle row, third bench, red t-shirt girl, जिसने hand raise किया। We are viviparous. Yes. So humans are viviparous because we give birth to young ones. हम young ones को देते हैं, not eggs or larva or anything else. ठीक है? That's good. Now, what is the difference between sexual reproduction in humans? ठीक है ना? In humans and our frog. So we are going to compare frog and humans here. ठीक है? So now, number of eggs. जो eggs हैं, कितने, कौन ज्यादा देता है? फ्रॉग ज्यादा देता है या ह्यूमन? Frog. But we can write down here many. And humans? One. One per month. ठीक है? Site of fertilization. External. It's external, and humans? Internal. Internal. Now site of development. External. And in human? Internal. So metamorphosis is in frog or in humans? Frog. It's here, not here. So this is how we can differentiate them. ठीक है, हम इसके बेसिस पे इनको differentiate कर सकते हैं। So now reproduction system in humans, that is the topic of today. ठीक है, ये चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। होता क्या है? What is that? So now sex organs. मेल, पहले तो ये पता होना चाहिए इसका मतलब होता है मेल। इन साइंस आप यही यूज करोगे, इन बायो, इन हायर क्लासेस, इफ यू टेक मेडिकल, ठीक है। सो दिस इज द सिंबल फॉर द मेल एंड दिस इज फॉर द फीमेल, Female. ठीक है। नोट डाउन बेटा, ये टेबल नोट करो एवरीवन, नोट डाउन दिस टेबल।
So this is the difference between male and female human. We are talking about here now human particularly. ठीक है? Now sex organs in male and female. What we mean by sex organs? Sex organs that produce sex cells. Sex cell यानी gametes. ठीक है? जो gametes produce करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? इन मेल इट्स टेस्टिस. क्या प्रोड्यूस करता है? गैमीट, जिसका नाम है स्पर्म. इन फीमेल इट्स ओवरीज दैट प्रोड्यूस गैमीट, सेक्स सेल्स यानी एग, और वी कॉल इट ओवा. ठीक है? यू कैन कॉल एग ओवा और ओवम. ठीक है? नाउ डक्ट. डक्ट मीन्स, अभी मैं आपको बताऊंगी डक्ट क्या होता है. डक्ट आप समझ लो लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर. इट्स जस्ट लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी स्पर्म और एग. जहां पर ये बने हैं वहां से कहीं और लेके जाते हैं. ठीक है? दैट इज देयर ड्यूटी और देयर रोल डक्ट का. तो जो मेल है उसमें उसको वेस्ट डेफरेंस. ठीक है? वेस्ट डेफरेंस. इन फीमेल इट इज कॉल्ड ओविडक्ट. It is called oviduct. इनका दो अलग नाम भी है. I will tell you that also later on when we draw the diagram. ठीक है? या फिर इसमें लिख ही लो, इसमें ब्रैकेट में. Oviduct means fallopian tube. It's a fallopian tube and here vas deferens की जगह साथ में ब्रैकेट में लिखो sperm duct. Sperm duct. Copulatory organ. Copulatory organ is that organ that release. ठीक है? जो क्या करता है, जो स्पर्म है, ठीक है, उसको बॉडी से बाहर निकालता है. ठीक है? so that it can come into the contact with the egg. So here we can say penis in male. ठीक है? but here in female there is no copulatory organ क्योंकि egg बॉडी के अंदर ही रहता है. that's why fertilization is internal and development is internal because egg is inside the female's body only. It is not going to move out. Move out hota hai in case of it is not fertilized. But here we are talking about fertilization case where baby is going to born. ठीक है? Everyone note down बेटा. इस टेबल को अच्छे से बनाओ. It will come for exam. तो डक्ट का मैंने आपको बता दिया. सेक्स ऑर्गन्स दैट रिलीज गैमीट्स. ठीक है? कॉपुलेटरी ऑर्गन का लिखो. कॉपुलेटरी ऑर्गन में ब्रैकेट में लिखो इसको. राइट डाउन विच इंजेक्ट sperms in female reproductive system. Female reproductive system. ठीक है? This is copulatory organ. इसको मैं बड़ा कर देती हूँ if it's not visible to you. Now is it visible? Yes. इसको मैंने बड़ा कर दिया so that you can see it. So this is copulative. अब womb क्या होता है? Womb होता है माँ, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चादानी, या फिर अगर हम कहें नॉर्मल बहुत ही लेमन लैंग्वेज इफ वी से, हम कहते हैं माँ, जैसे कहते हैं माँ की गोद, है ना, पेट बेसिकली एज गेट प्रेग्नेंट. ठीक है? बच्चा कहाँ ग्रो कर रहा है? हम कहते हैं पेट में ग्रो कर रहा है. इट्स अ वूम. वूम क्या है? यूट्रस. बेसिकली वी आर टॉपिक साइंस में बहुत पर्टिकुलरली जाए कहाँ बच्चा ग्रो कर रहा है, कहाँ उसका साइज बढ़ रहा है इनसाइड द फीमेल्स बॉडी. इट्स यूट्रस. ठीक है? यूट्रस इज दैट पार्ट वेयर बेबी इज ग्रोइंग, डेवलपिंग इनसाइड द फीमेल्स बॉडी. So it is not present in male, it is present in females only, that is uterus. ठीक है? ये टेबल सबका हो गया? Yes. Okay, so that's fine. Now everyone you have to draw, ठीक है, the structure of, first we are going to start with male reproductive system.
मेल reproductive system. Okay, if we talk about male reproductive system is totally different from female reproductive system. ठीक है, it is different from female. How? So let's see. Suppose this is a boy. ठीक है, कोई boy है, सबने इसको बनाना है. Everyone draw this. ठीक है, सो दिस इज एब्डोमन. यहां तक आपका क्या होता है? पेट, एब्डोमन. ठीक है, नाउ फ्रॉम हेयर, बाहर को ऐसे जो है बेटा बैग्स निकले होते हैं. दीज आर कॉल्ड स्क्रोटम. एवरीवन मार्क इट. ये आपको बुक में नहीं मिलेगा इतना इजी. इट इज कॉल्ड स्क्रोटम. एंड इनसाइड द स्क्रोटम्स हियर दे हैव टेस्टिस. दे हैव टेस्टिस. अब हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था. टेस्टिस आर व्हाट? सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस गैमेट्स, यानी स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है. ठीक है, इज इट राइट? अब यहाँ पर आप देखने वाली चीज क्या है बेटा? एब्डोमन इज हियर एंड इट इज आउटसाइड द बॉडी. ये बॉडी से अलग ही निकल के आई है, तो इट इज नॉट इनसाइड द एब्डोमन. पेट के अंदर नहीं है, इट इज आउटसाइड द एब्डोमन. इसी के साथ एक और पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहर होता है, जिसको हम कहते हैं पेनिस. ठीक है, एंड पेनिस इज अ वे जिससे मेल क्या करते हैं? रिलीज यूरिन. ठीक है, यूरिन, इट्स अ कॉमन पाथवे फॉर द यूरिन एंड द सीमन. ठीक है, पेनिस इज द कॉमन pathway for urine and semen. ठीक है, दोनों का जो है सेम पाथवे है. इज इट करेक्ट? अंडरस्टूड? Yes. तो दिस इज नॉर्मल. अगर हम नॉर्मल कहें, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अब इनसाइड द एब्डोमेन, पेट के अंदर क्या है उसके बारे में भी जानते हैं. सबका ये ड्रॉ हो चुका है? इज इट डन? Yes. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में, दो तरह के मैं डायग्राम दिखाऊंगी. जो आपको लगे यू कैन ड्रॉ इट. ठीक है, सो आई एम ड्रॉइंग इट फॉर द इन टू वेज. और सबने वैसे ही बनाना है. एवरीवन विल ड्रॉ इट, क्योंकि बेटा दिस डायग्राम कैन कम इन योर एग्जाम एंड यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ इट. सो सबसे पहले आपने क्या करना है? अपने फर्स्ट यू आर गोइंग टू ड्रॉ ब्लैडर. ब्लैडर क्या होता है? वो जगह यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है. बनने के बाद किडनी से फिल्टर होके वो ब्लैडर में स्टोर रहता है जब तक वो एक लेवल तक भर ना जाए और वी फील अर्ज टू डू और गो फॉर पी. ठीक है, दैट इज व्हाट. सो फर्स्टली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस ब्लैडर. ब्लैडर इज लाइक दिस, बैग जैसा होता है. इट इज लाइक बैग. ठीक है, अब आपने क्या करना है? जस्ट पहले मुझे एक बार ड्रॉ करने देना बेटा. So this is pipe like structure जो किडनी से आ रहा है. It is coming from kidney, that is ureter. जो किडनी से यूरिन लेके आ रहा है, it's a ureter. ठीक है, ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. सबसे पहले इसको बनाओ ऐसे.
Draw like this. Now on the both side, draw this circle, round like structure. ये देखो यहां से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है फोल्ड होके आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली हियर ऑल्सो, फ्रॉम हियर ऑल्सो इट इज मूविंग लाइक दिस। अभी पीछे से होते आएगा, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होते हुए, वेयर इट इज कमिंग, इट इज कमिंग हियर। मैं आराम से स्लो स्लो करके बना रही हूँ सो दैट यू कैन ड्रॉ इट वेरी वेल, ठीक है, लाइक दिस। Try to use different colors as I am using. भी हमने स्क्रॉटम पढ़ा था। Inside scrotum, this round structure is testis. In table, we discussed about duct. I told you ducts are what? That carry in male sperms from where it is produced to another area. ठीक है? So here we have this vas deferens. Vas deferens, जिसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये यहां से स्पर्म को पहले ड्रॉ कर लिए बेटा, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, इज इट डन ना? सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। Okay, so now here, suppose here sperms are formed. Okay, now these sperms will go from here, यहां से होते हुए यहां पर ये जो वेस्ट डेफ्रिन है यूरेथ्रा में आकर मिलेगा। ओके, वेयर इट इज कमिंग बैक टू यूरेथ्रा, ठीक है।
सो यूरेथ्रा में यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर से, फ्रॉम vas deferens से sperm are coming. ठीक है. So now here this orange color structure is what? Seminal vesicles. These are seminal vesicles. Note down beta. Seminal vesicles, and this is prostate gland. I'll tell the role of this also. And this is the whole male reproductive system. ये पूरा का पूरा male reproductive system है. ठीक है. Now यहाँ तक हमने पढ़ा sperm यहाँ से आके seminal vesicles के यहाँ पर आके मिल गया urethra से. Now what are the role of seminal vesicles and prostate glands? So now sperm has to move where? In the urethra. उसे urethra में pass होना है. To move, sperm needs fluid. उसे ऐसी कोई चीज चाहिए जो उसको लेके जा सके, जो उसको बहा सके. ठीक है. So from where it is coming? So role of seminal vesicles and prostate. लिखो इसे. दोनों का रोल. Provide fluid to sperm for its movement, ताकि वो move. ठीक है. उसको lubrication दे सके. Second point, sperm, it's a cell. It needs food. It needs nourishment. It needs nutrients. From where it is coming? It is coming from the secretion. जो चीजें ये रिलीज कर रहे हैं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, उनके फ्लूइड में उसके लिए न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. सेकंड आ गया प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म, ताकि स्पर्म हेल्दी रह सके. ठीक है. सो दैट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट्स. अब यहां पर आके मिक्सिंग हो गई है स्पर्म के साथ, लिक्विड कंपोनेंट ऐड हो गया है, उसको जो है खाना भी मिल गया है. नाउ इट कैन कम फ्रॉम हेयर एंड इजेक्ट आउट थ्रू पेनिस. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर? Yes. सबने ड्रॉ कर लिया है? Yes. ओके. एक वे ये है, फर्स्ट वे इज दिस टू ड्रॉ दिस, एंड सेकेंड वे इज द साइड वे. तो आप साइड वे में भी इसको बना सकते हैं. सिमिलरली फर्स्टली ड्रॉ यूरिनरी ब्लैडर. आपको अगेन यूरिनरी ब्लैडर बनाना पड़ेगा. हियर द यूरेटर. ठीक है. सेम लाइक दिस. ठीक है. बट अब इसको हम साइड वे में दिखा रहे हैं. ओके, आई एम मेकिंग इट इन द साइड वे. सो व्हाट यू हैव टू डू, the side I have to draw like this. Same वही structure है, but in the side way. So you can label it now. You can easily label it. This is penis. ठीक है. This is scrotum. Inside scrotum, round structure is testis. Draw this बेटा. It is the side way. Side way में अगर आ जाए, अगर आपको ये label करने के लिए आ जाए, तो you don't get confused. That's why I am showing you this also. So draw this. Okay. Again, vas deferens. Bladder, urinary bladder. It is basically urinary bladder is part of excretory system. But because urethra is common in both reproductive system and in excretory system, that's why we are drawing this also. Urinary bladder,
This is ureter, and here is urethra, and it makes our male reproductive system complete. If it's done, raise your hand if this diagram is done. So we can move to the female part also. But before this, I want to show you or want you to make diagram of sperm also. If it's done, then we will move. Done, beta? Yes. और किस किस को now it is clear how to draw male reproductive system? Raise your hand. How many of you are clear now? How can you draw this structure? Yes, I think everyone. That's nice. Okay. Now coming to the structure of sperm. It's like this. Sperm structure is like this. Everyone draw this. So it is divided into three parts. First, second, and this is third. This is head. This is middle piece. I think piece spelling is wrong. Middle piece and this is tail. अब ये जो तीनों चीज है इनका अपना अपना रोल है. In head they have nucleus. I think you are going to learn about nucleus in the next few classes when you learn about cell. So nucleus is that part in our cell that holds genetic material. Genetic material क्या हो गया? जो हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स मिल रहे हैं. ठीक है? So that is what. So nucleus. तो head में क्या है? Nucleus है. Now here in the middle piece, it is having another component or organelle, माइटोकॉन्ड्रिया. इसके पास है माइटोकॉन्ड्रिया. इसको लिख लो. ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है? प्रोवाइड्स एनर्जी. ये एनर्जी देता है. नाउ टेल. टेल रोल इज फॉर लोकोमोशन, मतलब उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है जब वो मूव करता है. So this is the role of each and every part of sperm. So head is having genetic material क्योंकि इसके पास क्या है? न्यूक्लियस. Is it done? Yes. And this is the structure of sperm. ठीक है? Now let's move to the female reproductive system. It is comparatively easy as compared to male. Female reproductive system. As compared to male, it is very easy. ठीक है? Again, use colorful pen pencil. So when we talk about female reproductive system, again we are going to discuss about sex organs, ducts, okay, and the womb, that is uterus, that we already discussed. Okay. So now
लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अगेन. अब इसको कैसे बनाना है? फर्स्टली यू नीड टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. सबने ऐसा स्ट्रक्चर एक बनाना है. ओके, यू नीड टू ड्रॉ स्ट्रक्चर लाइक दिस. सबसे पहले ऐसे एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर बनाओ, नॉट कंप्लीटली ट्रायंगल बट ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ. नाउ अगेन जैसे हमने उसमें दोनों साइड राउंड बॉडीज बनाई थी फॉर द टेस्टिस, here again we are drawing two round bodies, but these are not testes. Here is female sex organ, that is ovary. 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 ठीक है. अगेन वहां पर होल्ड करने के लिए और स्पर्म को इधर से उधर ले जाने के लिए वी हैव vas deferens. Here we have oviduct. ठीक है. तो here it's finger like, यहाँ पर प्रोजेक्शन बनाएंगे जैसे कि किसी ने हाथ से पकड़ा हो. Right like this. इसको ऐसे बनाओ. Then like this. This is oviduct, or we called it fallopian tube. Fallopian tube. Now, this structure here, this triangular structure is uterus. ये है uterus. This is, ये जो छोटा सा एरिया नजर आ रहा है, it is cervix. जहां पर uterus is end. This opening is vagina. So this is the whole reproductive system of female. ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. सो इन ओवरी एग रिलीज्ड एवरी मंथ. हर महीने सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है. नाउ दिस ओविडक्ट टेक दिस फ्रॉम हियर और इसको यहां पर ले आती है एवरी मंथ. ठीक है, मैं जूम कर देती हूँ बेटा. सबका ये डायग्राम हो गया? इज इट डन? शैल आई एक्सप्लेन? Yes. Ma'am, yes. Okay. So now, तो यहाँ देखो ध्यान से. एग रिलीज होता है एवरी मंथ. इट मूव्स टू फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर. ठीक है. अब यहां से देखो, इट इज ब्रॉड. ये ब्रॉड एरिया है और यहाँ पर आके नैरो है. कैन यू सी दिस? Yes. Yes. यहाँ पर ब्रॉड है, इट इज नैरो हियर. ठीक है. फैलोपियन ट्यूब है, इसका ये वाला पार्ट को हम कहते हैं एम्प्यूलरी. इट इज कॉल्ड एम्प्यूलरी. एंड दिस पार्ट यहाँ पर जो पतला हो रहा है, इट इज कॉल्ड इस्थमस. इसको लिखो बेटा, इस्थमस. अब यहाँ पर ये एग वेट करता है. इट वेट्स फॉर व्हाट? फॉर स्पर्म एवरी मंथ. कि अगर कोई स्पर्म आता है तो इट गेट फ्यूज्ड हियर. सो स्पर्म कहां से आएगा? वजाइना से होते होते होते
यहां से होते होते वो आएगा, ठीक है। व्हेन स्पर्म रीचेस हियर, जब स्पर्म यहाँ पहुंचता है, ठीक है, इट रीचेस हियर, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन होता है। सो कहां पर हो रहा है फ्यूजन? इट इज हैपनिंग, कहां पर हो रहा है? इट इज इन एम्पुलरी isthmatic isthmic जंक्शन, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, इन बिटवीन ऑफ दैट। तो ये है कहां पर? इट इज इन फैलोपियन ट्यूब। सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर हम नॉर्मल कहें इट इज फैलोपियन ट्यूब, अगर डीप में कहें तो हम कहेंगे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। Site of egg production, it's ovary. Site of fertilization, fallopian tube. And site where baby develop, it's uterus. Is it clear to everyone? Is it clear? Say yes or no. I have a question. Yes, do I have a question. Yes, do ask beta. Ma'am, why male reproductive system is out of abdominal cavity and why female reproductive system is inside the abdominal cavity? It's depend upon the, it's all, everything is depend upon the gametes. Gametes को कैसा कंडीशन चाहिए, कैसे उसे नरिशमेंट चाहिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा बाहर है, अभी पैदा हुआ है, हम उसको क्यों रैप करके रखते हैं, क्यों उसे ऐसे खुले में नहीं रखते? क्योंकि उसकी ग्रोथ कैसी होगी? जब उसको थोड़ा वार्म जो है टेम्परेचर मिलेगा। यस, ऐसे ही एग जो है, जो मुर्गी है वो एग के ऊपर बैठी रहती है ना, जब तक वो हैच नहीं हो जाता उसको ऐसे क्यों नहीं छोड़ देती कि एग तो निकल गया है, इट कैन हैच इटसेल्फ। क्योंकि उसको वो इन्वायरमेंट चाहिए, उसे वो टेम्परेचर चाहिए। ओनली देन दैट जो चिकन है वो बाहर निकल के आएंगे। सिमिलरली इन मेल्स जो सेक्स सेल्स हैं, टेस्टिस से जो निकल रहे हैं स्पर्म्स, दे नीड लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो उनकी पूरी बॉडी है, अगर उसका टेम्परेचर सपोज कर लो इट्स 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर हम कहते हैं। But for the sperm formation, it needs lesser temperature. उसको इस टेम्परेचर से भी थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। और वो कब मिलेगा? जब वो बॉडी से बाहर होगा। तो अब बॉडी से ऐसा भी नहीं है कि बाहर ही निकाल दो। तो भगवान ने क्या किया? इट इज बाय गॉड ओनली बेटा। क्या? गॉड मेड मेल्स बॉडी बिट डिफरेंट। दे मेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब बॉडी से बाहर, एब्डोमेन जो है उससे बाहर उन्होंने जो है उनकी बॉडी में पाउचेस दे दिए हैं, दैट आर कॉल्ड स्क्रोटम, जो कि बॉडी से अटैच है, बट दीज आर नॉट इनसाइड द बॉडी। गॉट इट बेटा? इज इट क्लियर? Yes. Yes. For the sperm formation, males have scrotum because scrotum holds testes and testes produce sperm, and the formation of sperms body needs less temperature. ठीक है? Is it clear? Yes. और किसी को कोई डाउट? Do ask any of you, because it's very important chapter. It is going to relate with your next chapter, reaching the adolescence. ठीक है, वहां पर भी आप इससे लिंक चीजें पढ़ोगे। सो डू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग, डू आस्क। इट्स अबाउट अस ओनली, हम अपनी बॉडी के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। अगर कोई चीज है क्यों? व्हाई इट इज, क्या रोल है? आंखें हैं तो आंखें है क्यों? क्यों हमारे पास जो एंटीना नहीं है चींटियों की तरह, है ना? सो सिमिलरली वी शुड अवेयर ऑफ अबाउट आवर बॉडी। हमें अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली रिटन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। हमें सब पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में अगर ये चीज है, ये चीज हो क्यों रही है, व्हाई इट इज हैपनिंग नाउ, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट Yes. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू with the our assignment। चलो असाइनमेंट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस ओनली, ठीक है। यही है जो अभी हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किया है, उसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पार्ट लेबल्ड एक्स? जो एक्स है वो है क्या? सो आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम चहक चौधरी। चहक चौधरी इज देयर?
Yes, better come forward with your worksheet and tell me the answer of first question. Yes. So which of the following is the correct about the part labeled X? X है क्या? Ma'am, D option. It's D It is option. That's arrow right. that So has in the passing the urine and sperms. yes. तो इसका नाम क्या है बेटा? ये सिर्फ ये पार्ट है. अगर हम बाकी सब हटा दें, यूरिनरी ब्लैडर से निकलता हो दिस पार्ट. Ma'am, urethra. Urethra. It's a urethra. That is a common passage for sperm and urine. That's right. Sit down, beta. So answer is D. Everyone mark D is the correct answer. Coming to next question, and for this I'm going to call from B section Angel Monica. So what is the function of the testes in males? And D option. B option. So वैसे तो अभी B कर लेते हैं. Okay. वैसे इसमें होना चाहिए था हार्मोन्स ऑल्सो. हार्मोन्स को सा एक ही हार्मोन एक ही केमिकल प्रोड्यूस करता है. इसको ब्रैकेट में लिखो क्योंकि ये रीचिंग द एडोलेसेंस में आपके काम आएगा अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो. सो एक तो टेस्टिस का काम क्या है? इट्स रोल इज टू प्रोड्यूस गैमेट दैट इज स्पर्म. अनदर रोल इज प्रोड्यूस हार्मोन जिसको हम मेल हार्मोन भी कहते हैं. टेस्टोस्टेरोन उसी के नाम से बना है. टेस्टोस्टेरोन जो कि हेल्प करता है स्पर्म की प्रोडक्शन में भी. ठीक है. टेस्टोस्टेरोन जिसके कारण मेल्स में जैसे ही वो 13 इयर्स के होते हैं उनकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं. दे आर बिकमिंग एडल्ट. यू आर ऑल ये सभी के सभी बच्चे अभी उसी स्टेज में हो. यू आर एडोलेसेंट नाउ. यस 13 इयर्स के हो. Yes. Yes. वी आर टीनेजर. Yes. तो दिस इज अबाउट यू. आपको तो बहुत खुश होना चाहिए. यू आर जो आपकी बॉडी में भी चल रहा है. यू आर लर्निंग दिस एंड यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ दिस ऑल्सो. ठीक है. एंड यू आर ब्लेस्ड. एंड यू आर ब्लेस्ड बिकॉज नाउ चिल्ड्रन वाला फेज खत्म. नाउ यू बिकमिंग एडल्ट. अब आपकी जर्नी Yes. शुरू होगी टुवर्ड्स एडल्टहुड एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट. अच्छे एडल्ट बनो. ठीक है. एडल्ट बन रहे हो समझदार बनो. ठीक है. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. एडल्ट बनना ये नहीं होता कि आई कैन टेक माई डिसीजन. नो वो तो छोटा बच्चा भी ले लेता है कि मुझे चॉकलेट खानी है तो खानी है ना. छोटा बच्चा भी डिसीजन लेता है. तो Yes. एडल्ट होना इज नॉट कि टेकिंग डिसीजन. एडल्ट होना मीन्स नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ठीक है. एक अच्छे इंसान बनने जा रहे हो. नाउ यू नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. यू कैन डिफरेंशिएट दैट. ठीक है. Yes. यस. सो आई बिलीव कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं जब आप 18 ईयर प्लस होंगे तो जब आप वोट करोगे तो यू बिकम ए वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. है ना. Yes. Yes, that's good. So now with this coming to the third question from C section Anuradha. So beta third question is refer to the given figure, identify the label parts P to S, select the correct option. So you have to identify. So हमने ये structure किया था. We have done this structure. So I am drawing it again for you. ठीक है. मैं थोड़ा सा भी रफ बना रही हूँ क्योंकि now we have to solve other questions also. So now it is given P is this, okay, Q is this, R is this, and S is this. So now you have to identify which is what. So do you know, Anuradha? Beta आवाज नहीं आ रही है. I'm not able to hear you, Anuradha. Beta voice is not coming. एक बार ऑन ऑफ करके देखना. No, ma'am, it's not coming. Earlier it was coming. Yes, now it's coming.
Thank you. A option. You are saying A option. So firstly, बेटा PQRS बताओ ऐसे क्या? Q is what? Q is fallopian tube. Fallopian tube. It's a fallopian tube. Everyone इसको ऐसा लिखो भी, ठीक है? Everyone note down like this. सीधा A ऑप्शन में बताओ. इवन जो X है, जो ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें लिखो it's urethra. P Right is on, it's urethra. चलो इस पे आ गया हम. Q is this. Now P is what? ovary. Ovary. That's nice. R is Uterus. uterus. And S is Vagina. vagina. That's nice. तो आंसर इसके हिसाब से बनता है it's A. That's nice बेटा. Coming to fourth question. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के लिए A सेक्शन से जशन शर्मा. जशन शर्मा from A section. Ovulation is. Ovulation क्या होता है? A section. जशन is there. जशन प्रेजेंट है नहीं है? फर्स्ट बेंच बताओ. डू कंफर्म हु इज हैविंग माइक. बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही. Oh, Jashan is not here, ma'am. ओके मैम. Anyone other? So Jashan is not here. Manmeet Kaur. And we. Ma'am, option C. Release of sperms from testes. अब इसको ध्यान से देखो बेटा. टर्म को ध्यान से देखना है हमने. टर्म दे रखी है ओव्यूलेशन. अब इसको अगर हम ब्रेक करें, ओव्यूलेशन, ये जो ओव्यू है किससे रिलेट कर रहा है? इज इट रिलेटिंग विद द स्पर्म और इज इट रिलेटिंग विद द एग और ओवा? किससे रिलेट कर रहा है? Ovum. Ovum. सो ओवम से रिलेट कर रहा है, तो हाउ कैन वी से इट्स ओव्यूलेशन? सॉरी, इट इज विद स्पर्म. ओव्यूलेशन मतलब होता है, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, मैंने आपको डायग्रामेटिकली शो किया था. एग एवरी मंथ रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरीज. ठीक है, इन फीमेल एवरी मंथ एग रिलीजेस. ठीक है, एंड वेट फॉर द स्पर्म, जो आपको मैंने फर्टिलाइजेशन वाला बताया था. अब ये जो एग रिलीज होता है फ्रॉम हेयर एंड गोज टू फेलोपियन ट्यूब, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. एग का ओवरी को छोड़ के जाना, इट इज ओव्यूलेशन. गॉट इट बेटा? Ma'am, yes. So now based on this, which is the correct option? Ma'am, A option. A is the correct option. That's good beta. Sit down. Sit down. Now coming to the fifth, and for this Gurinder Singh from B section. Gurinder Singh from B section. Where he left the school. Okay, Harsimran Kaur is there? Yes. Okay. So Ma'am, beta, option D. option Ma'am, D, nourishment and development of the fetus. fetus. That's right. That's right. That's good beta. Sit down. Coming to the sixth question, and for this, Ajao Harsh Kataria from C section. So, beta, question is, which of the following carries sperm from the testis to the urethra in males? So, it is basically about the duct. कौन सा duct होता है? Option B. Option B, yes. Vas deferens, जिसको हम sperm duct भी कहते हैं. That's good beta. Sit down. Coming to seventh question, and for this, Sarabjot Singh from A section. Sarabjot Singh. What is the function of the prostate gland in males? अभी हमने ये लिखवाया था. I ask you to note down. Ma'am, option D. Option Ma'am, D. D. Yes. So yes, prostate gland helps in the क्या करता है? Secrete fluid that nourishes and help in the movement of sperm. That's good beta. Sit down. I'm glad everyone, सबका आंसर अभी तक सही है. I'm glad. So now coming to the eighth question. Now it is related to the sperm structure. जो sperm का structure अभी हमने पढ़ा था, ठीक है? It is related to this only.
ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया, सो इट इज इजी फॉर यू। सो कमिंग टू 8th क्वेश्चन, एंड फॉर दिस तरनदीप सिंह फ्रॉम बी सेक्शन। तरनदीप सिंह, so yes बेटा, Option A. yes बेटा, यू आर Option सेइंग A. ए। चलो पहले हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। ए, हेड ऑफ स्पर्म क्या करता है? हेड ऑफ स्पर्म के पास क्या है? न्यूक्लियस है, तो उसके पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल, Material. है ना। अभी हमने पढ़ा था सारा, वी लर्न इन डिटेल, Yes. है ना। सो दिस इज व्हाट। कमिंग टू द मिडल पीस, उसके पास क्या है? इट इज हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड्स एनर्जी। Yes. अभी हमने पढ़ा था इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। दिस पार्ट टेल, तो ये क्या करेगा? इट इज गोइंग टू हेल्प इन मूवमेंट। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? बताओ। Option A. ऑप्शन ए ही बनता है, ठीक है। सो सॉल्व लाइक दिस, सबने ऐसे सॉल्व करना है, मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए, आई नीड द रीजनिंग ऑल्सो, ठीक है। Coming to 9th question, site of fertilization in humans is Mani Sharma from C section. Mani Sharma from C section. हाँ जी बेटा. So site of option. Yes. Option number D. D. Yes. Ampullary isthmus junction, जो कि fallopian tube में अभी हमने पढ़ा था, ठीक है. Sorry, B. अभी हमने पढ़ा था. If I go back, तो this is the area. यहाँ पर, ठीक है. So now coming to the 10th question. For 10th question, I would like to call from C section say Nitika. Nitika? Yes, beta. Which of the following is not single-celled? I'm option C. Yes, embryo. Embryo is not single-celled, while egg, sperm, zygote are single-celled. That's good. Coming to 11th question. अब ये आप अपने आप volunteer करोगे कि किसको आंसर आता है. Development of zygote into embryo in human starts in dash and is completed in dash. So raise your hand. I would like to see how many of you know the answer. Raise your hand. So A section, middle row, first bench, red t-shirt. Yes, beta, you tell me. I'm option B. B. It starts from fallopian tube and ends in uterus. ठीक है. सारी जो डेवलपमेंट है बच्चा पूरा का पूरा यूट्रस बनता है, ठीक है. कमिंग टू 12th, study the given figure and select the incorrect statement you have to choose regarding this. So who will tell me? Raise your hand. So what is showing here? It is, I am just giving you an idea. It is egg, ठीक है, female egg, and it is sperm. So it is shown here like this. So what is this? What process is this? कौन सा process है ये? Fertilization. It's a fertilization because sperm is meeting with egg. So it's a fertilization. तो अब इसमें से incorrect statement कौन सी है? Which one is incorrect? D. D. So answer is D. क्योंकि इसमें fetus नहीं बन रहा है. It is not fetus. ठीक है? So resulting structure formed after fertilization is fetus. It's not fetus. It's just fertilization process. ठीक है? Coming to 13th question. So who is going to tell me about 13th question? I want answer from C section now. C section से कौन बताएगा? Who is going to tell me from C section? It's very simple. It's very simple. Okay, I would like to call. Okay, now many hands are raised. मैं उसको उठाने लगी थी जिसका हाथ नहीं है. Okay, now I can see many students are going to raise their hands.
So I would like to call from corner row, yellow t-shirt girl, first bench. So beta, you tell me, arrange the following in correct order in which the following stages occur. सबसे B option. फर्स्टली पहले बताओ क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? Gametes. सबसे पहले gametes, यानी gametes, if we talk about gametes, it means sperms and eggs. Yes? Yes. ये हो गए. Then उसके बाद क्या होगा बेटा? They fuse and they form a structure called zygote. From zygote, they form embryo. From embryo, they form fetus. And last Body. So based on this, the correct option is it's B. तो फॉर्मेट लाइक ऐसे आपने सबने जो है आंसर सॉल्व करने हैं. सीधा आंसर मत बताओ. आई नो यू कैन गिव मी द आंसर, बट मुझे ये बताओ किया कैसे, हाउ यू गेट इनटू दिस. ठीक है. सो बाकी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, and I want each and every student to draw male and female reproductive system twice at least. दो बार उसको ड्रॉ करो ताकि आपको एकदम याद हो. डायग्राम याद होगा, यू कैन गिव आंसर. ये जो सॉल्व अभी हमने किए हैं उन सबके आंसर यू कैन गिव इजली. ठीक है. सो दैट्स ऑल बेटा. नाउ योर मैथ्स क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट. ओके. सो बाय स्टूडेंट्स. Thank Thank you, ma'am. ओके बेटा. Okay. You have this third question in your module. Same question है आपके module में बेटा? Yes. Yes बेटा. Okay. The question is, what would you get on simplifying this? इसको simplify करना है. What do you mean by simplify? Okay. The question is simplify, or you can say इसको oblique करके कर लो solve. सिंप्लीफिकेशन आ सकती है आपको एग्जाम में, सॉल्व करना आ सकता है. ओके. और क्या आ सकता है? दे कैन आस्क यू फाइंड द वैल्यू. फाइंड द वैल्यू ऑफ ये सारा, ये जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है. ठीक है. क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है. यू शुड नो कि अगर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन आए तो भी द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू. सॉल्व आएगा देन ऑल्सो find the value of this expression, then also it will be same. Write down in different words in your module. You can write down with a pen. कुछ भी आएगा, we have to perform the same way. कुछ अलग method नहीं है उसका करने का. Okay, something is given to you. Now what we understand by science? You can see here first expression into second expression plus one expression and then second expression. There is a plus sign in between. So what do you understand by this? आपके माइंड में क्या आता है कि क्या करना चाहिए? क्या करें? सबसे पहले शुरुआत कहां से करें? इमेजिन करो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि 3 into 4 plus 10 into 2. ऐसा क्वेश्चन होता, फिर आप क्या करते? First we have to simplify the number. First we have to multiply. Addition तो नहीं करोगे ना पहले. First you will multiply and then you will do addition. Addition. Very good. Expressions को आपने एक नंबर की तरह ट्रीट करना है. You are in 8th class. छोटे क्लासेस में आपने सारे नंबर्स के साथ सोचा हुआ है. You have already done कि कैसे करते हैं नंबर को. ऐसा होता immediately you are telling me कि 12 करेंगे और यहाँ पे फिर 20 करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे. पहले मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन. सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर. ओके, लेट अस स्टार्ट इट. ओपन द ब्रैकेट. वी हैव टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके. कईयों को तो याद होगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या पढ़ी थी आपने 6th और 7th में, बट आई एम रिकॉलिंग वंस मोर. व्हाट डू यू डू इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? You
multiply x by the bracket and then y by the bracket. This is called distributive property. Okay? Understand and then write down. Without understanding नहीं लिखना आपने. What we did, we opened the bracket. Yes, beta. Same thing we will do for the second bracket. It is x into y minus x plus 2y into y minus x. We use distributive property. You also write down use distributive property. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर है x वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर y इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन. Yes. Yes. Okay. Let us open it now. ये बहुत एक्सपैंड हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के. अब हम छोटी छोटी ब्रैकेट्स को खोलेंगे. Let us do it. It is 2x square plus xy minus 2xy minus y square. What we did? We opened the small bracket. Carefully, do it carefully. Lip sync करो, मुंह से speak with the mouth, beta. Quietly. When you do lip sync, you avoid your mistake. Fine. Lip sync करो, मुंह से बोलो और साथ साथ में लिखो. Multiplication कर रहे हो आप और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बाहर यहाँ पे नेगेटिव था तो आपने अंदर के सारे साइन चेंज करने हैं. y into 2x is 2xy लेकिन नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज आउटसाइड देयर इज अ नेगेटिव साइन. सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट ब्रैकेट. इट विल बी प्लस तो आना ही आना है बीच में. नाउ वन चाइल्ड कम फॉरवर्ड टू हेल्प मी. व्हाट विल वी राइट? B section, Gurinder Singh. He left the school. Okay. A section, Sarabjot Singh. Please help me. What would you write in second bracket? सब कुछ आपके सामने ही है. Now we will multiply x with y, so we get xy. Yeah. आगे. And then sign of minus at x multiply by x will be x square. Very good. And then plus sign. And 2y multiply by y equals 2y square. Very good. And minus 2yx. 2yx. Very good. Small bracket has gone. Please sit down. Very good. सोच के बताया उसने nicely. Small bracket has gone. Now we are going to open bigger bracket. Okay, let us open it. It will be 2x square plus xy minus 2xy. थोड़ा दूर दूर लिखो इनको. अभी हम कुछ नहीं देख रहे कि कौन लाइक है कौन अनलाइक है. We are not looking. At a time हम एक काम तो कर रहे हैं. At a time we are just opening the bracket और कुछ नहीं देख रहे हैं. Okay. Plus xy minus x square plus 2y square minus 2yx. अपना एक माइंड मेकअप कर दो कि एट ए टाइम आई विल डू वन थिंग देन आई विल सी कि कौन आपस में लाइक टर्म्स हैं कौन आपस में कैंसिल हो रही हैं. वी विल सी इट लेटर. स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी कोई गलती नहीं होती. ओके. नाउ लेट अस कंबाइन द लाइक टर्म्स. दिस इज 2x square. This is minus x square. Do you know it? It is x square.
नेक्स्ट वन इज xy. xy की कौन कौन सी टर्म्स है? 1 2 3 4 4 टर्म्स है आपके पास. कंबाइन करो इनको. वेरी गुड. क्या क्या हो जाएगा? 1 minus 2 is -1. मैं यहाँ पे एक और स्टेप करना चाहूंगी क्योंकि काफी बच्चों को ना मिस्टेक होती है यहाँ पे प्लस माइनस करने में. आई वुड लाइक टू राइट वन मोर स्टेप जिसमें हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे. 2x² माइनस x² कंबाइन हो गया. देन प्लस xy माइनस 2xy. इकट्ठा करके लिख लो उनको, पास पास लिख लो. माइनस 2xy. यू नो yx और xy एक ही बात है. yx and xy, are they like? Yes. Yes, they are like. Okay, xy वाले सारे over हो गए. Now what is left? Minus y square is left and plus 2y square is left. Please be careful, बहुत सारी terms हैं. You also check mine. कहीं मेरे से तो नहीं, मेरे कोई छूट गया नंबर? Count it. Let us count. 1 2 3 4 5 6 7 8. नीचे हमने 8 पूरी लिखी है कि नहीं? Let us count it. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes. हमारी कोई टर्म मिस नहीं हुई है. Now we have to combine the like terms and you have to write the final answer. It will be equal to, do it yourself बेटा, प्लस माइनस अपने आप करो. इंटीजर्स की आपने की हुई है. I'll be asking you the answer. I will write answer at the top. Do it yourself, I will ask you. अपने आप प्लस माइनस करो लाइक टर्म्स को. वेरी गुड. जिसने कर लिया हाथ खड़ा करो. टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फर्स्ट वाले में आपके भाई क्या आएगा? ये जो लाइक टर्म्स है, यू विल गेट एक्स स्क्वायर. Okay, next is you have plus 1 minus 2, that is minus 1 plus 1. इन तीनों को यूज किया आपने चारों को. What is coming? xy वाले जो कंबाइन किया तो क्या आया आपके पास? हाथ खड़े करो किसने ये सॉल्व की ये चारों टर्म्स को. Okay, I'm doing it over here. You see it बेटा. See, दो टर्म्स को बेटा कंबाइन करो. दो टर्म्स को लाइक टर्म्स को, जैसे 1 minus 2 is -1. ठीक है. -1 plus 1 is 0. And -2xy अकेला रह गया तो we will write down -2yx. -1y square and plus 2y square. It will be plus y square. सिर्फ आपके पास 3 टर्म्स बच गई हैं. मुझे बताइए काफी बच्चों ने सॉल्व तो किया होगा लेकिन आपको कंफ्यूजन हो रही है कि xy लिखें या yx लिखें या प्लस लिखें या माइनस लिखें. प्लीज रेज योर हैंड हु हैव डन दिस स्टेप. इसको सॉल्व करके जिनका ये आया क्वेश्चन, हाथ खड़े करो बेटा. वेरी गुड. सेम आया आपका साइन एंड ऑल एवरीथिंग. वेरी गुड. तो ये आपके पास क्या है? आइडेंटिटी है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने किया हुआ है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. Yes, so this is an identity. X minus y whole square. Identities आपके माइंड में होनी चाहिए हमेशा कि you know it. There are it is like this. इसको जब कंपेयर करोगे you will come to know कि it is of this form. वहां पे AB की फॉर्म में है, यहाँ पे आपके पास XY की फॉर्म में है. Right? So आपकी option is coming with B option, x minus y whole square.
राइट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई एट होम ऑल्सो, एक बार दोबारा इसको करना, when you revise once more then it becomes easy for you. Next question, but anything you want to ask in this question? हमने बहुत सारे steps इसमें किए हैं. I'm revising in short this question कि सबसे पहले आपको small brackets खोलनी है, उसके बाद bigger brackets खोलनी है, उसके बाद terms को like terms को इकट्ठा करना है और उसको solve करना है. That's it. जैसे ही आपके पास unlike terms आएंगी आप उसको छोड़ सकते हो. That will be your final answer. Okay, let us start next one. Question number 4. Result of subtracting. Result means find the answer of subtracting 3pq p plus q from 5pq and p minus q. Think of it कि इसको माइनस के साइन में हम कैसे लिखेंगे. C section Navya, sorry, C section Janvi, please tell me कि इसको हमने माइनस की फॉर्म में कैसे लिखना है, किसको किस में से माइनस करें. Ma'am, 3pq bracket p plus, ma'am, 5pqq minus p minus 3pq q plus p. You mean to say this कि इसको हमने, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसमें से हमने इसको माइनस करना है. Ma'am, yes. Say this. Very good. This is the most important step. शुरुआत कैसे कर रहे हैं अब इसको? बहुत कुछ दिख रहा है हमें. So many things we see. ब्रैकेट दिख रही है हमें, PQ दिख रहा है. How shall we start it? Ma'am, first we will open bracket. Small bracket, है ना? We will open bracket. Okay, good, beta. Please start doing. Good. Go and sit at your place. Do it. Very good. Open the small bracket. She has given a clue. Everybody start. Open the small bracket. Do it very good, confidently. After some time, I will write on the board. You can check from there, but you start it on your own. Open the bracket means you have to multiply. Distributive property. You are applying distributive property. Distributive property आप apply कर रहे हो कि जो बाहर नंबर है वो 1 by 1 दोनों से multiply होगा. Okay, who have done? They can check from the board. It is 5p square q minus 5pq square. Exponential का chapter you have done in 7th class. P into P is P square. You know, small bracket has gone. Minus 3p square q plus 3pq square. हमारा फोकस था स्मॉल ब्रैकेट को खोलना. दैट्स इट. वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग एल्स. वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. वी हैव टू स्कोर फुल 2 marks. Fine. Now our thing is to open the bigger bracket. Please continue. Who are doing themselves, they can check from the board. Put an arrow. I told you when there is negative sign outside the bracket, all the signs inside will change. Remind yourself by putting this arrow.
Whenever you see negative sign outside the bracket, put this arrow. It will you will recall it in this way. Here we have to change the signs inside. It is plus, it will become negative, so it will be 3pq square. Bracket has gone. First thing is over कि हमने bracket को खत्म कर दिया. Second thing we use, combine the like terms. Combine the like terms. Go step by step. This is p square cube. This is p square cube. So you are writing them together. Same. This is pq square. This is pq square minus 5. pq square minus 3pq square. You have combined the like terms. Most important, आपकी मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है. स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलते हैं. मान लो किसी का ये लास्ट स्टेप में आपकी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो यू विल गेट 1 मार्क आउट ऑफ 2 बिकॉज यू हैव डन दिस स्टेप एज करेक्ट, दिस स्टेप एज अ करेक्ट. ये फाइनल यहां तक आप पहुंच चुके हो, आपको 1 मार्क फुल मिलेंगे. अगर आपका फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाता है तो भी. ओके, एवरी स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You know it. It is 2 minus 5 minus 3 is 2. You are writing 2p square cube minus minus plus. You will be adding them. Yes. Integer के chapter में आपने पढ़ा हुआ है. So sign will be of bigger number. So it will be h pu. Square. Yeah, your option is B option. B. Which option is matching? It is B. You know, but this is complete question. Subjective form में भी आ सकता है आपको. So be ready for that. If you have understood all the subjective questions, तो MCQ तो पक्का आपसे हो ही जाएंगे. Because फिर आप थोड़ा सा फास्ट करते हो MCQ क्वेश्चन, आप रफ में सॉल्व करके देखते हो. जब रफ में करते हो तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती है ना. एक दो स्टेप करोगे, क्विकली अपना हाथ चलेगा आपका एंड MCQ से आपको गेसिंग हो जाएगी कि which option is coming. Right? पूरे चैप्टर में आपकी ऐसे वाली क्वेश्चंस है. सो इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बट यू हैव टू बी कॉशियस एट एवरी स्टेप कि माइनस ना गलत हो जाए, कोई नंबर ना मल्टीप्लाई गलत हो जाए एंड कुछ मिस ना हो जाए. राइट? ओके, नेक्स्ट वन बेटा. फिफ्थ क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस. Simplification of this. Fifth question I am giving you for homework. Please try at home. Okay, I am telling you the hint of it. Its option will be coming D. You can write the answer. This is your homework. You have to apply same process. Simplification or solve it or find it, whatever जो भी आएगा. You have to open the bracket, solve it, and you will see आपको पास D option आएगी. इसको लिख लो. You can try at home. Similarly, question number 6. That is also same. I'm giving you hint. Simplification. You have come to know open कैसे करनी है bracket. इसकी आपके पास आएगी A option. Okay. अगर किसी को डाउट है, कोई स्टेप नहीं समझ आया किसी क्वेश्चन में, you can start ask me now बेटा. क्योंकि घर पे you will be doing yourself. Everybody has understood? Will you be able to do 5th and 6th? Yes? Okay, very good. Try it, okay? Challenge लिया करो. You are in 8th class. Take a challenge of solving new questions. छोटी क्लासेस में होता था कि हमने इतने क्वेश्चन रेडी किए हैं, वही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाने हैं. ठीक है? Now in bigger classes, take challenge of using न्यू कंसेप्ट, न्यू क्वेश्चन, वे ऑफ आस्किंग अलग अलग होता है. ओके, फिर आपकी हैबिट हो जाएगी. फियरलेसली यू विल बी डूइंग न्यू क्वेश्चंस. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नया क्वेश्चन आ गया तो अभी क्या करना है. अप्लाई योर कंसेप्ट, ओपन द ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, साइन देखो, लाइक टर्म्स करो. दैट्स इट. कुछ भी नहीं है इसमें. नेक्स्ट यू हैव बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. नीचे एमसीक्यू आपके डन. Subjective question में first question is subtract 2x plus 3y. नोटबुक में लिखो अपनी ये एक्सप्रेशन. 3 एक्सप्रेशन कौन कौन सी हैं? Note it down.
Okay, you have subtract this expression from the sum of इस फिर आपको 2 expressions दी हुई हैं, first and second. Write down completely all the steps, all the expressions. 3 expressions आपके सामने हैं, तो तीनों में से आपके पास फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है. I'm done. Oh, very good. Raise your hand who have done. Very good, very good. Good. Okay, जल्दी से अभी A section से. That girl can come forward. Yellow t-shirt girl. Yes. आ जाओ बेटा. You can tell me what you found. First, we have to add 5x minus y plus 2z Okay. with 3x plus 2y minus 5z. Yes. Then you are doing it. Okay. पहले आपको एडिशन करनी है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है. तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? Ma'am, 6x plus 4y minus. Ma'am, when we add, we get 8x plus y minus 3z. Okay, all right. This is simple question. You'll be able to do. Okay, good beta. Please sit down. Addition, subtraction. You have done. You told me last time कि हमने column method से स्टूडेंट को आप क्या करोगे? पहले 2 plus 3 निकालोगे. आपके पास एक expression आएगी. Okay, and then you will subtract first expression from here. Students who have not done it now, they can write in short form. जिनको मुश्किल लग रही है अभी करना, they can do at home. पहले we will do 2 plus 3. एक एक्सप्रेशन आपके पास आएगी, उसमें से हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस करना है. ओके, ये 2 टर्म्स है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. 3 बहुत सिंपल सी टर्म्स है, कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है. एक्स वाली टर्म को इकट्ठा कर लो, वाई वालों को इकट्ठा कर लो, जेड वालों को इकट्ठा कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. बेटे आपका ये जो चैप्टर है, देखो सब कुछ आपने वट एवर यू डिड विद द नंबर्स, आज तक आपने जो जो नंबर्स के साथ किया, उनकी प्लस माइनस, उनकी फॉर्मूला, सेम थिंग आप यहाँ पे अभी एक्सप्रेशन की फॉर्म में कर रहे हो यूज. इट इज नॉट टोटली न्यू थिंग फॉर यू. ओके, रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है, इट इज L into B. लेट अस अप्लाई इट. ओके, वहां पे आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे आप एक्सप्रेशंस को करोगे. स्टार्ट डूइंग बेटा. Area of rectangle is equal to L into B. Time is over. Yes, I'm closing it. Okay, please try at home. Simply इनको दोनों को multiply करना है. Second question try करना घर पे करने का. Okay, see you next time. Bye bye. Bye, ma'am.